a pointed response to UP Chief Minister Yogi Adityanath's "Batenge to Katenge" statement, Shivpal Yadav has taken a firm stance. He emphasized that the interest of the Pichhda, Dalit and Alpasankhyak communities will not be divided. He also warned that those who make divisive statements could face consequences. He claimed that a poster has been displayed outside the Samajwadi Party office in Lucknow saying, "Na batenge na katenge, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे." Chief Minister Yogi Adityanath gave a statement of "Batoge to Katoge" to consolidate Hindu voters, to unite the Hindu community for the upcoming elections. This statement resonated through Maharashtra also, where in Mumbai several of the posters of Chief Minister Yogi Adityanath were put up across Mumbai of "Batoge to Katoge" to consolidate Hindu voters. Now Samajwadi Party is seen to have been attacking Chief Minister Yogi Adityanath and BJP by putting up these kind of posters which reads "Na batenge, na katenge, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे." So this is a poster that has now come up outside Samajwadi Party office and Akhilesh Yadav's residence. And it's a poster that has been placed by a youth leader of Samajwadi Party. And clearly with this poster, Samajwadi Party is now counter-attacking BJP and Chief Minister Yogi Adityanath. But the statement that was given by Chief Minister Yogi Adityanath of "Batenge to Katenge" was just not for the UP. But that statement is being used not in Maharashtra elections also, and will be used in the Uttar Pradesh 2027 elections also. The Samajwadi Party has already used that line, "Na batenge, na katenge." So this is the response of Samajwadi Party which they have given to the BJP and Chief Minister Yogi Adityanath. Now, Samajwadi Party MLA Shivpal Yadav has also quoted controversy, issuing a warning in response to the call of "Batenge to Katenge" given by the CM in Uttar Pradesh. The Samajwadi Party neta has said that those who are trying to divide will be beaten up. राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। We have Manoj Yadav of the Samajwadi Party joining us on the broadcast. Manoj Yadav जी, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि पिटेंगे, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए बंटना नहीं है। नहीं, कौन से योगी आदित्यनाथ जी की जो अवधारणा है बटेंगे कटेंगे की, उसका क्या मतलब है? संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति ये कैसे सरकारी कार्यक्रम में और मंचों से इस तरह की बात कर सकता है क्या? कहां से, किससे बटने की बात कर रहे हैं आप? अगर इस तरह की बात करने वाले व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री, तो आप मुझे बताएं, पूरा प्रदेश और देश जानना चाहता है कि हिंदू एक है, तो फिर एक हिंदू को मूछ रखने पे क्यों मारा जाता है? एक हिंदू को घोड़ी पे क्यों नहीं चढ़ने दिया जाता? क्या योगी आदित्यनाथ कहना चाहते हैं? कुछ बताएं, स्पष्ट करें। शिवपाल जी ने उनको नहीं तो जो पीडीए की आप बात कर रहे हैं, पीडीए में भी क्या ये बटने का फॉर्मूला नहीं है कि आप पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की केवल बात कर रहे हैं? ये बांटने का तरीका नहीं है क्या? ये भी एक सवाल। बचता ही क्या है? इसके बाद बचता ही क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के बाद इस देश में कितनी आबादी बसती है? और आबादी में भी ऐसे लोग हैं जो इसी विचारधारा को मानते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना। क्या आप एज एंकर भेदभाव मानती हैं कि किसी के साथ इस देश में डिस्क्रिमिनेशन होने चाहिए क्या? मुझे तो नहीं लगता आप चाहती होंगी, मैं चाहता हूं, या कोई व्यक्ति चाहता हूं। और अगर आप चाहते हैं तो फिर इस देश को संवैधानिक दायरे में रखने का फिर मतलब ही कहां? नहीं तो एक बात बताइए फिर, ठीक है, तो फिर पिटने की बात कहना ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं, वो शपथ उन्होंने लिया, आप वो कैसे बात कर सकते हैं बटने की, लेकिन ये कहना कि ये लोग पिटेंगे, ये सही है? तो योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सही करने के लिए किसी को भी मारा जा सकता है, रोक दिया जाएगा, बोले ट्रेन चला दी जाए, ये सही था क्या? ओके, stay on with us, Manoj Yadav. We have Mohsin Raza joining us on the broadcast as well. Mohsin Raza, your counter. मनोज यादव कह रहे हैं कि ऐसी बात, पहली बात, किसको बांटने की बात कर रहे हैं, कौन बांट रहा है, और ऐसी बात मुख्यमंत्री कैसे कर सकते हैं?
काउंटर इनका ये है कि ना तो वो बटेंगे ना वो कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे, और शिवपाल यादव कह रहे हैं कि पिटेंगे। देखिए, सीधी सी बात यह है कि नफरत करने वाले या बांटने वाले लोगों को प्रदेश और देश की जनता ने निकाल के बाहर कर दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति, बांटने की राजनीति कांग्रेस करती थी, उन्हें निकाल दिया। आप उत्तर प्रदेश में देखें, किसने बांटने की राजनीति की थी, किसने तुष्टीकरण और किसने संप्रदायवाद की राजनीति की थी। समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी हुई है कार सेवकों की हत्या पर। तो अगर किसी एक समुदाय की विशेष के लोगों को हत्या करके आप किसी एक समुदाय को खुश करें तो बांटना इसको कहते हैं। और अगर आप आदरणीय योगी जी की बात कर रहे हैं, हमारे मनोज भाई, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम भी यही बात कर रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि हमारा देश एक रहना चाहिए, देश का एक एक नागरिक एक होना चाहिए। हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, इसलिए आपको ये नारा नहीं अच्छा लगेगा। क्योंकि आज भी आप पीडीए जो लेकर घूम रहे हैं, ये इसीलिए लेकर घूम रहे हैं, बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं आप। आपको पीडीए बनाने की जरूरत क्या थी? सब देशवासी हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से देश को आगे लेकर बढ़ रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए आप इस पर क्यों नहीं आना चाहते? आप हिंदू मुसलमान आप करेंगे, आप जातिवाद की राजनीति आप करेंगे, पराकाष्ठा कांग्रेस ने करी देश के अंदर, आज सांप्रदायिक दंगे 3000 कांग्रेस ने कराए देश के अंदर, और इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर है। अरे जवाब भगवा दीजिए। प्रकाश का प्रतीक है तो भगवा आपको बुरा लगता है? जवाब दीजिए। आप अपने जीवन मनोज यादव से जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा बने रही हमारे साथ, जवाब लेते हैं। आप पूर्व मंत्री रहे हैं और अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, समझ बड़ी अच्छी है, बड़े तेज तर्रार व्यक्तित्व के। वैसे योगी जो बांटने की बात कर रहे हैं, इन्हीं की कम्युनिटी से बांटने की बात कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा हृदय दिल लेके आप मोहसिन रजा साहब योगी आदित्यनाथ जी की पैरोकारी कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। अरे हम आप ही के लिए तो लड़ रहे हैं, तो आप ही से भेदभाव की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों से मत, मुसलमानों के उसमें रहना, मुसलमानों को ही देश बना के हम एक होना है हमको। खैर, मैं आपके लिए दुआ पढ़ूंगा और जुम्मे के दिन भी पढ़ूंगा दुआ कि कम से कम आप को सद्बुद्धि दे ऊपर वाला अल्लाह ताला, और ये महसूस कराए कि कम से कम मोहसिन रजा जी को थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ किसके खिलाफ बोल रहे हैं। मनोज यादव, समाजवादी पार्टी आदरणीय शिवपाल जी, आदरणीय राष्ट्रीय जी, सब किसको एक करने की बात। अब मुझे हतप्रभ लगा कि आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। All right, Manoj Yadav and Mohsin Raza, thank you very much for joining us on the broadcast. So this has snowballed into a massive controversy with the Samajwadi Party now hitting back at the BJP, saying na batenge na katenge, 2027 में नफरत फैलाने वाले हटेंगे, to which the BJP is also providing a response. In a pointed response to UP Chief Minister Yogi Adityanath's batenge to katenge statement, Shivpal Yadav has taken a firm stance. He emphasized that the interest of the Pichhda, Dalit and Alpasankhyak communities will not be divided. He also warned that those who make divisive statements could face consequences. He claimed that a poster has been displayed outside the Samajwadi Party office in Lucknow saying, "Na batenge na katenge, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे." Chief Minister Yogi Adityanath gave a statement of batoge to katoge to consolidate Hindu voters, to unite the Hindu community for the upcoming elections. This statement resonated through Maharashtra also, where in Mumbai several of the posters of Chief Minister Yogi Adityanath were put up across Mumbai of batoge to katoge to consolidate Hindu voters. Now Samajwadi Party is seen to have been attacking Chief Minister Yogi Adityanath and BJP by putting up these kind of posters which reads na batenge na katenge, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे. So this is a poster that has now come up outside Samajwadi Party office and Akhilesh Yadav's residence. And it's a poster that has been placed by a youth leader of Samajwadi Party. And clearly with this poster, Samajwadi Party is now counter-attacking BJP and Chief Minister Yogi Adityanath. But the statement that was given by Chief Minister Yogi Adityanath of batenge to katenge was just not for the UP. But that statement is being used not in Maharashtra elections also, and will be used in the Uttar Pradesh 2027 elections also. The Samajwadi Party has already used that line, na batenge na katenge. So this is the response of Samajwadi Party which they have given to the BJP and Chief Minister Yogi Adityanath.